Welcome back, dear students. This is 11th Commerce OCM, chapter number 1, Introduction of Commerce and Business. This is a continued video. This is part 2. In part 1, if you remember, we had already seen its first part. In that, we had seen different types of economic activities, such as business, profession, and employment. If you remember, okay, you can watch that video in my YouTube link. So first of all, in this part 2, what we are going to expand this chapter is that we are going to study about different types of business. Okay, in the first part we had seen business, okay, its features, but now we are going to elaborate it. Okay, we are going to see it in expansion form. Okay, so let us start. So as you can see from this slide, here we are going to classify the business activities. Here there is a classification chart, classification tree, which you can see here. Okay, in that different types of business has been classified. So first of all, as you can see, the business is classified between industry and commerce. Okay, there are two basic classification of business, that is industry and commerce. In industry, again you can see primary industry, secondary industry, and tertiary industry. Okay, that these words you must have heard in your school life also. Okay, primary sector, secondary sector, tertiary sector. Okay, these are the same thing. So primary, secondary, and tertiary. Okay, these are the three basic industrial sectors which are divided here. Okay, and another branch of business is commerce. Commerce is again divided between trade and auxiliaries to trade. Okay, this particular all things we are going to study in the next part of this chapter. Okay, this video. Okay, basically all this thing, this full chart, full classification chart is going to be studied now in this video. Okay, in next part. So coming back to primary industry, secondary industry, and tertiary industry, again the classification is given. Primary industry में क्या होता है, secondary में क्या आता है, tertiary में क्या आता है. As you can see from that, primary industry, everyone knows primary industry is mainly concerned with what? Agriculture. India basically being an agriculture country, even today more than 50 to 60% of population is directly or indirectly engaged in agriculture. Okay, so it is a basic source of income, source of GDP, and source of livelihood for maximum number of people even today in a country like India. Okay, so agriculture is the base of economy of India. So primary sector is vast in India. Agriculture, okay, here you can see agriculture, extractive industries, genetic industries, such type of examples are given. In secondary, you can see in secondary it is given manufacturing and construction. Okay, tertiary sector is related to transport, banking, hotel, tourism, entertainment industry, etc., etc. Okay, so these are the bifurcation of industry. Now commerce, right hand side of that classification, commerce is divided between trade and auxiliaries to trade. Trade, everybody knows, trade means business. Okay, home trade, foreign trade, it is divided between two: home trade, foreign trade. Home trade also it is simple: wholesale and retail. Everybody knows wholesaler, retailer. And foreign trade it is divided between three parts: import, export, and interport. That is called as re-export. We'll see about it in detail. And last, auxiliaries to trade. Auxiliaries to trade is nothing. Auxiliaries का मीनिंग यहाँ पे ऐसा होता है कि these are helpers to trade, these are aids to trade. यानी इसके बिना बिजनेस नहीं चल सकता है. ये बिजनेस को बहुत हेल्प करते हैं ट्रेड करने के लिए. ओके, बिजनेस को चलाने के लिए सारी चीज़ें आपको मददगार होती है. इसके लिए उसको ऑक्सिलरीज टू ट्रेड कहा जाता है. उसमें ट्रांसपोर्ट, वेयरहाउस, इंश्योरेंस, बैंकिंग, एडवर्टाइजिंग, मर्केंटाइल एजेंट्स, कम्युनिकेशन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा दिया हुआ है, जो आप भी समझ सकते हो कि अगर कोई बिजनेस चला रहा है तो उसको ये सारी चीज़ें रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ज़रूर पड़ती ही होगी. ओके, सो दिस पर्टिकुलर थिंग वी आर गोइंग टू स्टडी इन डिटेल. ओके, सो एज यू कैन सी फ्रॉम दिस क्लासिफिकेशन चार्ट, दिस होल चार्ट is bifurcated between industry and commerce, and the details are also bifurcated between industry and commerce. So this particular thing we are going to study in this part. From these pictures you can see here, there are industry, agriculture, manufacturing units, transport, banking, tourism, import, export, etc., etc., for your better understanding. Okay, continuing with the first part. In the first part we are going to see what? Industry. In the previous slide also we had bifurcated industry into three parts. Industry is classified into three parts. Okay, what were they? Primary, secondary, and tertiary. Okay, primary industry, secondary industry, and tertiary industry. So let us understand first of all that in a pictorial form. Okay, so you see here in this picture, as you can see, the economy is divided between primary, secondary, and
tertiary sectors. First of all, in the primary sector, yes, you can see from this, okay, rounded circle. Primary sector is related to what? Agriculture, fishing, mining, farming, etc., etc. Okay, this is called as primary sector. It is other name is given as extractive sector because it extracts something from soil or ground. Okay, so this is called as primary sector. Second, it is what? Second year sector is given as secondary sector. Okay, secondary sector relates to what? Manufacturing activities. Okay, manufacturing activities, companies है, factories है, okay, builders है, everything. This comes under what? Manufacturing activities. And last we have what? Tertiary sector. This is related to service sector, distribution sector, marketing sector. Okay, so this is the third sector which helps the economy. So all these sectors together form what? Economic sectors. Okay, so here we are going to study first of all industry in detail. So let us see what is the industry. Industry implies the economic activities that are associated with conversion of resources into goods that are ready for use. Okay, so industry, for example अभी यहाँ पे 3 सेक्टर दिए हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं प्राइमरी सेक्टर का एग्रीकल्चर का पार्ट ले लूँ, ओके, सो एग्रीकल्चर का अगर कोई फार्मर एग्रीकल्चर में वीट, ज्वार, बाजरा कुछ भी उसमें उगाता है, ओके, तो वो उगाने के बाद वो किसी न किसी को बेचेगा आगे, ठीक है, मंडी में बेचेगा, किसी प्रोड्यूसर को बेचेगा. वो प्रोड्यूसर अपने फैक्ट्री में, अपने कंपनी में जाके उसको प्रोसेस करेगा, पैकिंग करेगा और वो मार्केट में उसको बेचेगा. तो तीनों सेक्टर यहाँ पे आ गए. पहले फार्मर था, प्राइमरी सेक्टर, उसने किसी को बेचा फैक्ट्री में, वो हो गया सेकेंडरी सेक्टर, और बाद में वो मार्केटिंग करके मार्केट में बेच रहा है, वो हो गया टर्शियरी सेक्टर. सो एवरी सेक्टर इज इन्वॉल्व इन एवरी पार्ट ऑफ प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन. ओके, सो इंडस्ट्री का रोल वही होता है. सो लेट अस सी व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज. फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज गिवन ए प्राइमरी इंडस्ट्री. ओके, हम लोग अभी इंडस्ट्री के अंदर ही बाइफर्केशन देख रहे हैं. ओके, प्राइमरी इंडस्ट्री, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, वो वाला पार्ट देख रहे हैं. तो सबसे पहले ए पार्ट प्राइमरी इंडस्ट्री. प्राइमरी इंडस्ट्री के अंदर भी 3 दिया है. प्राइमरी इंडस्ट्री का मतलब है विच इज कंसर्न विथ नेचर. ओके, इट इज नेचर ओरिएंटेड इंडस्ट्री. ओके, सो उसमें 3 पार्ट है. एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, एक्सट्रैक्टिव एंड जेनेटिक. एग्रीकल्चर इंडस्ट्री ज़्यादा एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं, सब जानते हैं. एग्रीकल्चर, इंडिया इज फेमस फॉर एग्रीकल्चर, बट द मेन ड्रॉबैक ऑफ एग्रीकल्चर इज व्हाट? इट इज डिपेंडेंट अपॉन नेचर. ओके, वाटर और रेन. ओके, बारिश अच्छा हुआ तो हार्वेस्टिंग अच्छा होगा, बारिश खराब तो हार्वेस्टिंग बुरा होगा. ओके, तो इट इज डिपेंडिंग अपॉन नेचर. एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री. एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री का मतलब क्या? जो कोई चीज़ एक्सट्रैक्ट करती है. फॉर एग्जांपल एक्सट्रैक्टिंग ऑयल, मिनरल्स फ्रॉम अंडरग्राउंड, फिशिंग, फॉरेस्ट्री एक्सेट्रा. ओके, तो ये सब एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री में आता है. ये भी प्राइमरी सेक्टर में ही आता है बिकॉज इट इज ऑल्सो कंसर्न विथ नेचर. सी, जेनेटिक इंडस्ट्री. ओके, ये मॉडर्न इंडस्ट्री है, जेनेटिक इंडस्ट्री. These are engaged in reproduction and multiplication of plants and animals. Example, animal husbandry, sericulture, horticulture, etc. etc. ओके, हॉर्टिकल्चर यानी जो फूल पौधे फार्मिंग वगैरह करते हैं उसका. फिर अपना एनिमल हस्बेंड्री के अंदर आप बहुत कुछ आ सकता है जो एनिमल्स का रेयरिंग करते हैं. ओके, पोल्ट्री फार्म का एग्जांपल आप इसमें दे सकते हो. ओके, दे आर मल्टीप्लाइंग द प्रोडक्ट्स, द एनिमल्स. ओके, सो दिस कम्स अंडर जेनेटिक इंडस्ट्री. ऑल दिस 3 A, B and C आर कंसर्न्ड विथ प्राइमरी इंडस्ट्री. Now what is there in secondary industry? Secondary industry देखते हैं. Secondary industry is always concerned with what? Manufacturing and construction. So let us see. Secondary industries depend upon primary industry. They convert raw material provided by primary industry into fishing goods. For example, tomatoes provided by primary industry are used for making sauce and ketchup. Okay, जैसे मैंने पहले आपको example दिया. फार्मर्स जो उसका प्रोड्यूस निकालता है वो आगे किसी को बेचता होगा कंपनी में, वो उसको प्रोसेस करके आगे मार्केट में बेचती है. सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ सेकेंडरी इंडस्ट्री. उसके अंदर 2 पार्ट है, मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन. मैन्युफैक्चरिंग यानी कौन? जो मैन्युफैक्चर करता है, कंज्यूमर गुड्स. एग्जांपल, शुगर, पेपर इंडस्ट्री, टेक्सटाइल, क्लॉथ्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा. कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, ये भी सब जानते हैं. कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज आर एंगेज्ड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स, डैम्स, ब्रिजेस, रोड्स, टनल्स, कैनल्स, मेट्रोस एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सो ऑल दिस थिंग, ओके, दे आर concerned with construction. Okay, heavy construction, so they are called as construction industry. And last part is called as tertiary industry. They provide support service to primary and secondary industry. Service facilities are provided by these industries. It includes transport, banking, which comes under traditional category, whereas in modern times hotel industry, tourism industry, entertainment industry are also included in tertiary sector. So all these 3 sectors are very important. They are very easy, they are very practical. यहाँ पे भी देखो एक चार्ट दिया हुआ है.
प्राइमरी सेक्टर सबसे नीचे, सेकेंडरी सेक्टर इन द मिडल एंड टर्शियरी सेक्टर अबव ऑल. ओके, सो दीज आर ऑल इन हायरार्की. ये ऐसे ही फंक्शन करते हैं. सबसे पहले कौन सा सेक्टर आता है? प्राइमरी, देन सेकेंडरी एंड देन टर्शियरी. ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट व्हाट? इंडस्ट्री. इंडस्ट्री के बारे में था ये पूरा. नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सी अबाउट कॉमर्स. ओके, जो बाइफर्केशन हम लोग ने पहले ही देखा था स्लाइड में, उसी का हम लोग आगे का पार्ट कर रहे हैं. सो दिस वाज बाइफर्केशन ऑफ इंडस्ट्री. नाउ वी आर गोइंग टू सी व्हाट अबाउट कॉमर्स. सो लेट अस सी व्हाट इज कॉमर्स ऑल अबाउट. उसका मीनिंग देख लेते पहले. Commerce is that part of business activity which is concerned with distribution of goods and services produced by industry. It includes all those activities which are essential for maintaining a free and uninterrupted flow of goods. Commerce bridges the gap between producers and consumers by exchange of goods and services for money or money's worth. Okay, commerce is further divided into auxiliaries and trade and auxiliaries to trade. Okay, so commerce is basically a expanded form of trade or इंडस्ट्री और बिजनेस. ओके, उसको पूरा एक होल वर्ड में हम लोग क्या बोलते हैं? कॉमर्स. बिकॉज कॉमर्स के अंदर सब कुछ आ जाता है, पूरे कंट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर बोलो, इकोनॉमी बोलो, सब कुछ आ जाता है. इसके लिए कॉमर्स इज अ ब्रॉडर टर्म देन बिजनेस और इंडस्ट्री. ओके, तो यहाँ पे अभी आप देख सकते हो, यहाँ पे एक चार्ट भी बनाया मैंने आपके लिए समझने के लिए, जो आगे हम लोग को करना पड़ेगा. तो यहाँ पे बहुत सारे कंज्यूमर चैनल्स होते हैं. आपने सुना होगा वो कंज्यूमर चैनल्स. कैसे कैसे चैनल्स होते हैं? पहला चैनल देखो, आपको क्या दिख रहा है? तो फर्स्ट चैनल व्हाट यू कैन सी इज हियर. ठीक है, प्रोड्यूसर कुछ चीज़ बनाता है, डायरेक्ट किसको बेचता है? कंज्यूमर को. ये सारे चैनल कौन से चैनल होते हैं? ऑनलाइन प्लेटफॉर्म. ऑनलाइन जैसे कि फॉर एग्जांपल अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, ये डायरेक्ट प्रोड्यूसर आपको बेचता है. बीच में कोई एजेंट नहीं है, कोई होलसेलर नहीं है, कोई रिटेलर नहीं है. आप डायरेक्ट ऑनलाइन खरीदी कर सकते हो. दूसरा चेन होता है प्रोड्यूसर, रिटेलर, कंज्यूमर. होलसेलर नहीं है यहाँ पे, सिर्फ कौन है? प्रोड्यूसर है, मैन्युफैक्चरर है, वो रिटेलर को गुड्स बेचता है और रिटेलर के पास से आप दुकान में जाके खरीदते हो. तीसरा है प्रोड्यूसर, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेलर. ठीक है, तो ये तीसरा वाला, ये ज़्यादा करके फेमस है. ठीक है, और लास्ट में क्या है? प्रोड्यूसर, एजेंट, होलसेलर, रिटेलर, कंज्यूमर. ये बहुत लंबा है. आज की तारीख में जो मेन चलता है वो कौन सा है? दिस पार्ट. ओके, द थर्ड वन, प्रोड्यूसर, होलसेलर, रिटेलर, कंज्यूमर. और अगर ऑनलाइन की बात करते हो तो आज की तारीख में क्या चलता है? प्रोड्यूसर और कंज्यूमर डायरेक्ट. ओके, सो दीज आर द चेन, कंज्यूमर चेन्स. तो उसके अंदर ट्रेड के अंदर वही आने वाला है, आपको वही सीखना है. ट्रेड इज डिवाइडेड बिटवीन होम ट्रेड और इंटरनल ट्रेड, एंड अगेन वी हैव सीन फॉरेन ट्रेड. ओके, सो लेट अस सी व्हाट इज होम ट्रेड. सबसे पहले होम ट्रेड में डिवाइड किया है ट्रेड को. तो होम ट्रेड के अंदर क्या क्या आएगा? होलसेल ट्रेड एंड रिटेल ट्रेड. होलसेलर सब जानते हैं. होलसेलर इज व्हाट? होलसेलर, गुड्स आर परचेज्ड एंड सोल्ड इन बल्क. बल्क का मतलब होता है इन हैवी क्वांटिटी, ह्यूज क्वांटिटी. होलसेलर कभी भी 3-4 चीज़ें नहीं खरीदता है कंपनी के पास से, वो बल्क में खरीदता है, करोड़ों का सामान खरीदता है. उसके पास बड़ा गोडाउन होता है, वो स्टोर करके रखता है और फिर उसको एक एरिया दिया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने कोको कोला की एजेंसी लिया, होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटरशिप लिया कोको कोला का, तो मुझे फैक्ट्री से 4-5 ट्रक भर के सामान जो आएगा वो मैं अपने गोडाउन में रखूंगा, और मुझे डीलरशिप, होलसेलरशिप दिया गया है पूरे एरिया का. फॉर एग्जांपल, अगर जो मेरा कंसर्न एरिया है, ओके, तो वो एरिया के 30 किलोमीटर या 50 किलोमीटर के रेडियस में मुझे पूरा एजेंसी दिया गया है. उसके अंदर मैं ही माल पहुंचाऊंगा और कोई नहीं दे सकता है. तो मैं सारे दुकान वालों को उस रेडियस में, उस 30-40 किलोमीटर के रेडियस में सभी दुकान वाले को मैं ही माल पहुंचाऊंगा. तो उसको कहते हैं होलसेलर. ओके, उसका खुद का ट्रांसपोर्ट वगैरह भी रहता है और रोज़ माल पहुंचाता है जैसे जैसे रिक्वायरमेंट्स आता है वैसा. तो होलसेल ट्रेड बल्क क्वांटिटीज़ में होता है. ओके, ही इज़ अ डायरेक्ट लिंक बिटवीन हुम, प्रोड्यूसर एंड रिटेलर. यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है कि वो लिंक किसके बीच में लिंक है? वो प्रोड्यूसर, कंपनी और रिटेलर, क्योंकि वो डायरेक्ट कस्टमर को नहीं बेच रहा है. वो प्रोड्यूसर से लेके, कंपनी से लेके किसको बेच रहा है? रिटेलर को बेच रहा है, दुकान वालों को बेच रहा है. ओके, उसका कस्टमर के साथ कोई लेना देना नहीं है. सेकंड, रिटेल ट्रेड. रिटेल ट्रेड यानी कौन? जो आजू बाजू, आपके घर के आजू बाजू भी जो दिखते हैं दुकान वाले, ओके, जनरल स्टोर्स, शॉप्स, होटल्स, एवरीथिंग. तो ये सब रिटेल ट्रेड जो करते हैं, तो रिटेल ट्रेड के अंदर ये आता है. और रिटेलर्स डायरेक्ट किससे डील करते हैं? कस्टमर्स, हमसे और आपसे. ओके, हम लोग जो दुकान में कभी भी लेने जाते हैं वो कौन सा दुकान होता है? रिटेल शॉप होता है. सो दे डील विथ कस्टमर्स. वो किसके बीच में लिंक होते हैं? वो होलसेलर और कस्टमर के बीच में लिंक होते हैं. वो सामान कहाँ से लाते हैं? होलसेलर के पास से. वो डायरेक्ट कंपनी के पास से नहीं लाते हैं. वो कहाँ से लाते हैं? होलसेलर. और वो किसको बेचते हैं? कस्टमर्स को. तो वो लिंक किसके बीच में है? होलसेलर और कस्टमर. ओके, सो दैट इज कॉल्ड एज रिटेल ट्रेड. रिटेलर इज द लिंक बिटवीन होलसेलर एंड ultimate customer. Okay,
इट इज़ एसोसिएटेड विद एक्टिविटी ऑफ सेल ऑफ गुड्स टू द फाइनल कंज्यूमर्स, ये हम लोग को आपको बेचता है। तो ये बात हो गई इंटरनल ट्रेड की, होम ट्रेड की। उसका बी पार्ट है फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड कैसा होता है देखो, ट्रेड व्हेन ट्रेड टेक्स प्लेस बिटवीन टू डिफरेंट कंट्रीज इट इज नोन एज फॉरेन ट्रेड। व्हेन बाउंड्रीज ऑफ टू कंट्रीज आर क्रॉस्ड देन डिफरेंट करेंसीज आर यूज्ड, इट इज फर्दर डिवाइडेड एज, अभी ट्रेड सब जानते हैं फॉरेन ट्रेड क्या बोलते हैं। फॉरेन ट्रेड आपने सबने वर्ड सुना होगा, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। ओके, नाउ व्हाट इज एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट? सबसे पहले इम्पोर्ट दिया है, इम्पोर्ट ट्रेड, एक्सपोर्ट ट्रेड, और थर्ड है इंटरपोर्ट ट्रेड। ये थर्ड आपने सुना नहीं होगा, आई विल टेल यू। फर्स्ट इम्पोर्ट ट्रेड सबने सुना है। इम्पोर्ट ट्रेड का मतलब क्या है? व्हेन गुड्स एंड सर्विसेज आर परचेज्ड फ्रॉम अनदर कंट्री इट इज कॉल्ड एज इम्पोर्ट ट्रेड। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी परचेज समथिंग फ्रॉम चाइना से और रशिया, ओके, देन इट इज कॉल्ड एज इम्पोर्ट, क्योंकि बाहर से गुड्स हमारे कंट्री में आ रहा है और उसके बदले हम लोग को हमारा करेंसी पे करना पड़ेगा उसको। ओके, सो इम्पोर्ट, जितना कंट्री का इम्पोर्ट कम होगा उतना कंट्री के बैलेंस ऑफ पेमेंट पॉजिटिव होगा। ओके, तो कहने का मतलब है ये है कि हमारा इंपोर्ट कम होना चाहिए और एक्सपोर्ट ज़्यादा होना चाहिए। ना व्हाट इज एक्सपोर्ट? उसका इंपोर्ट का बिल्कुल उल्टा। एक्सपोर्ट के अंदर क्या करेंगे? इंडिया से हम लोग अगर कोई चीज़ ओके बाहर भेजते हैं दूसरी कंट्रीज़ में, तो उसको कहते हैं, क्या कहते हैं? एक्सपोर्ट, बिकॉज वी आर एक्सपोर्टिंग समथिंग। एक्सपोर्ट के अंदर फ़ायदा क्या होता है? वी विल रिसीव फॉरेन करेंसी, तो उससे हमारे करेंसी का वैल्यू भी बढ़ेगा और हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट भी पॉजिटिव हो जाएगा। सो एक्सपोर्ट ज़्यादा होना चाहिए, इंपोर्ट कम होना चाहिए। आज चाइना ट्रेड में नंबर 1 क्यों है? वाई इज चाइना नंबर 1 इन ट्रेड बिजनेस? ओके, बिकॉज उसके एक्सपोर्ट कहीं ज़्यादा है, उसके इंपोर्ट बहुत कम है। वो जब पूरे दुनिया को एक्सपोर्ट करता है और बाकी दुनिया से लेता बहुत कम है। ओके, सो कहने का मतलब ये उसका बैलेंस ऑफ पेमेंट, उसका ट्रेड, उसका जीडीपी इसके लिए आज ज़्यादा है। ओके, नाउ व्हाट इज इंटरपोर्ट ट्रेड? इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट। ये दोनों का कॉम्बिनेशन है, इसमें इम्पोर्ट भी है और एक्सपोर्ट भी है। इट इन्वॉल्व्स इम्पोर्टिंग द गुड्स फ्रॉम वन कंट्री एंड रीसेलिंग दिस गुड्स टू अनदर कंट्री। यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया है, मैं भी आपको एग्जाम्पल देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आई गेट सम गुड्स फ्रॉम, से मैंने कोई गुड्स ऑस्ट्रेलिया से मंगाया, ऑस्ट्रेलिया से मैंने इंपोर्ट किया इंडिया में। ओके, सो आई बिकेम व्हाट? इंपोर्टर। मैंने इंपोर्ट किया। अभी वो ऑस्ट्रेलिया से गुड्स आने के बाद मैंने इंडिया में बेचा नहीं, उसका मैंने सिर्फ क्या किया? पैकेजिंग चेंज किया, अंदर मेरा कार्ड डाल दिया, ओके, उसका नाम थोड़ा चेंज कर दिया और फिर से उसको रीपैकिंग करके मैंने दुबई भेज दिया। ओके, सो ऑस्ट्रेलिया से मैंने इंपोर्ट किया, इंडिया में उसको रीपैकिंग किया, रीमार्केटिंग किया और उसी प्रोडक्ट्स को बिना कुछ यहाँ पे बेचे मैंने डायरेक्ट कहाँ पे एक्सपोर्ट कर दिया? दुबई। ओके, यूएई कंट्रीज़ में। तो मैंने क्या किया? इंटरपोर्ट किया, बिकॉज मैंने इंपोर्ट भी किया और एक्सपोर्ट भी किया, दोनों चीज़ें किया, तो इसको बोलते हैं इंटरपोर्ट। और ये पूरा किसका था? कॉमर्स का था, रिलेटेड टू कॉमर्स। ओके, सो इंडस्ट्री हम लोग ने देखा, कॉमर्स हम लोग ने देखा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट देखा, होलसेल रिटेल ट्रेड देखा। ओके, इट इज़ अ वेरी सिंपल इजी टॉपिक, प्रैक्टिकल टॉपिक, ये आप ओन में भी लिख सकते हो। नाउ कमिंग टू द लास्ट पार्ट विच इज ऑक्सिलरी टू ट्रेड। ऑक्सिलरीज टू ट्रेड मैंने पहले ही बताया आपको, ऑक्सिलरीज का मतलब क्या होता है? दीज आर हेल्पर्स, दीज आर एड्स। ओके, इनके बिना आप बिजनेस नहीं चला सकते हो। दीज आर हेल्पर्स टू ट्रेड, उसको बोलते हैं ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। जैसे कि आप यहाँ पे नाम से ही पता चल जाएगा आपको ऑक्सिलरीज टू ट्रेड में क्या क्या नाम दिया है। देखो, सबसे पहले ट्रांसपोर्ट, वेयर हाउसिंग, इंश्योरेंस, बैंकिंग, एडवर्टाइजमेंट, एजेंट्स, कम्युनिकेशन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। दीज ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ बिजनेस टू सर्वाइव। यहाँ पे बाजू में देखो पिक्चर्स भी दिया है मैंने आपको, ठीक है। ट्रांसपोर्ट है यहाँ पे, वेयर हाउस है, ठीक है, इंश्योरेंस है, बैंकिंग है, एडवर्टाइजमेंट है, कम्युनिकेशन है। सो दिस ऑल थिंग्स आर रिक्वायर्ड फॉर अ बिजनेस टू फंक्शन स्मूथली। सो लेट अस सी वन बाय वन ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। उसमें सबसे पहले क्या दिया है? ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट तो सबसे इंपॉर्टेंट है, बिकॉज प्राइमरी सेक्टर से गुड्स को सेकेंडरी सेक्टर में कौन लेके जाएगा? ट्रांसपोर्ट। सेकेंडरी से टर्शरी में कौन लेके जाएगा? ट्रांसपोर्ट। ओके, सो ट्रांसपोर्ट इज द लिंक बिटवीन ऑल थ्री सेक्टर्स एंड इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। वेयर हाउसिंग, वेयर हाउसिंग यानी क्या? जो गोडाउन वगैरह रहता है, जो भर के रखते हैं, स्टोरेज करते हैं, उसको वेयर हाउसिंग बोलते हैं। तो वेयर हाउसिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज फॉर एग्जांपल प्राइमरी सेक्टर के अंदर किसी फार्मर ने 1000 kg राइस निकाल के रखा है, तो क्या अपने घर पे रखेगा? नो, ही विल कीप दैट थिंग इन द गोडाउन और अ वेयर हाउस। ओके, तो वेयर हाउस में रखेगा, फिर जब किसी को चाहिए तब वो निकाल के देगा। फिर आगे चल के भी, आगे कंपनी में भी, फैक्ट्री में भी जब वो प्रोसेस होकर बन जाएगा, ओके, उसको भी कंपनी वाले तुरंत थोड़ी बेच देते हैं, उसको पहले वेयर हाउस में रखते हैं, फिर ट्रांसपोर्ट करते हैं अल्टीमेट कस्टमर तक जाने से पहले। सो वेयर हाउसिंग ऑल्सो प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। इंश्योरेंस, इंश्योरेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है हर एक के लिए, प्राइमरी सेक्टर हो, सेकेंडरी हो या टर्शरी हो।
प्राइमरी में एग्रीकल्चर लोगों के लिए भी आज की तारीख में इंश्योरेंस मिलता है, येस। सेकेंडरी में मैन्युफैक्चरिंग को भी मिलता है और टर्शियरी सेक्टर को भी मिलता है। सो इंश्योरेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज वी डोंट नो कि देर आर मैनी रिस्क इन्वॉल्व इन बिजनेस। हम लोग ने पहले ही पार्ट में देखा था, इसके पहले वीडियो में, कि बिजनेस के अंदर क्या होता है, रिस्क, और रिस्क को कवर करने का आसान तरीका क्या है, इंश्योरेंस। बैंकिंग, बैंकिंग भी इंपॉर्टेंट है, यस। बिना बैंकिंग के आप बिजनेस नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको अगर समझो किसी को पैसा भेजना है या लाना है या इंटरनेट थ्रू ट्रांसफ़र करना है, आरटीजीएस करना है, एनईएफटी करना है, चेक, डिमांड ड्राफ्ट, एवरीथिंग इट इज़ कंसर्न विथ बैंकिंग। सो बैंकिंग भी इंपॉर्टेंट है। आपके आजू बाजू जो बैंक होगा वो आपको वो सर्विस प्रोवाइड करेगा। एडवर्टाइजमेंट, आज की तारीख में एडवर्टाइजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक कहावत है, जो दिखता है वही बिकता है। ओके, सो कहने का मतलब ये है कि आप एडवर्टाइजमेंट जो देखते हो वही आप दुकान पे जाके मांगते हो। ओके, भले कोई प्रोडक्ट कितना भी अच्छा हो लेकिन उसका एडवर्टाइजमेंट नहीं है तो आप उसको नहीं मांगोगे। लेकिन प्रोडक्ट कितना भी थर्ड क्लास हो, कितना भी खराब हो, लेकिन उसका एडवर्टाइजमेंट बहुत अच्छा है, कोई एकदम सुपरस्टार को हीरो हीरोइन उसको एडवर्टाइज करता है, ठीक है, तो आप वो पहले जाके उसको मांगते हो। भले आपको दूसरी बार वो नहीं लोगे लेकिन एक बार तो जाके लेते ही हो ना। तो कहने का मतलब एडवर्टाइजिंग प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, बिकॉज कस्टमर को दुकान तक लाने के लिए और कस्टमर को चीज़ खरीदने के लिए कौन मजबूर करता है, एडवर्टाइजमेंट। आपने देखा होगा एग्जांपल के तौर पे, जो कार्टून चैनल्स होते हैं, पोगो वगैरह, कार्टून नेटवर्क वगैरह, वो पूरा टाइम उसके अंदर बच्चों से रिलेटेड के जो गुड्स होते हैं उसको एडवर्टाइज करते रहते हैं, और बच्चे वही मांगते हैं फिर पेरेंट्स से कि मुझे ये दिला दो, मुझे वो दिला दो। ओके, तो उसको एडवर्टाइजिंग का इफेक्ट होता है। सो एडवर्टाइजिंग प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। मर्केंटाइल एजेंट्स, मर्केंटाइल एजेंट्स यानी क्या होते हैं, वो एजेंट्स होते हैं, ठीक है, वो बीच में एजेंट होते हैं, बीच का काम करते हैं। वो प्रोड्यूसर, होलसेलर दोनों को मिलाते हैं और अपना दोनों का सेल करके खुद का कमीशन निकाल लेते हैं। उनको ब्रोकर्स भी कहा जाता है, एस्टेट एजेंट्स भी कहा जाता है। ओके, दे आर एग्जांपल्स ऑफ मर्केंटाइल एजेंट्स। एंड लास्ट, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, येस। बिना कम्युनिकेशन के लिए आप आज की तारीख में ठीक है, मोबाइल हैज़ बिकम द सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन। आज बिजनेस वाले भी सब मोबाइल से कर सकते हैं। बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स ऑल्सो कैन बी डन फ्रॉम मोबाइल, येस। ओके, तो पहले के ज़माने में जब ये इंटरनेट नहीं था, मोबाइल कनेक्शंस नहीं थे, तब थोड़ा डिफिकल्टी होता था, किसी को पैसे पहुंचाने होते थे, मैसेज पहुंचाना होता था। तो बट टुडे इन द वर्ल्ड ऑफ मॉडर्न कम्युनिकेशन एवरीथिंग इज पॉसिबल एंड इट हेल्प्स इन कंटिन्यूइंग योर बिजनेस सक्सेसफुली। सो दीज आर कॉल्ड एज ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ओके, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड यानी ये सारे हेल्पर्स होते हैं जो ट्रेड को मदद करते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट चैप्टर नंबर 1। इसके बाद इस चैप्टर के अंदर, एज यू कैन सी फ्रॉम द स्क्रीन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट 2 डिस्टिंग्विश है। अभी डिस्टिंग्विश बिटवीन आपने देखा होगा, आपने स्कूल लाइफ में भी किया होगा, डिफरेंस बिटवीन उसको कहते थे या डिस्टिंग्विश बिटवीन कहते थे। यहाँ पे भी आपको कॉमर्स लाइन में 11th कॉमर्स 12th कॉमर्स में ये डिस्टिंग्विश आने वाले हैं। ओके, इसका थोड़ा मैं आपको बैकग्राउंड बताता हूँ। पिछले साल तक जो ओल्ड सिलेबस था, पिछले साल तक, ओके, आपके लिए तो ये सेकंड ईयर है, न्यू सिलेबस का 11th के लिए, तो पिछले साल तक 5 मार्क्स का डिस्टिंग्विश हुआ करता था ओसी और एसपी में। ओके, इस साल से शायद 4 मार्क्स का आएगा आपको, 4 या 5, दैट विल बी इंटीमेटेड टू यू। तो कितने भी मार्क्स का है, 4 मार्क्स का हो या 5 मार्क्स का हो, मिनिमम हम लोग को 5 to 6 पॉइंट्स करना ही है। ओके, 5 to 6 पॉइंट्स आपको करना ही है। ये इतने सारे पॉइंट्स दिए, 10-10, 9-9, 11-11, कभी 12-12 पॉइंट दिए होंगे, लेकिन उतने नहीं करने आपको। 6 to 7, 5 to 7 का रेशियो रखो आप, 5 से 7 पॉइंट आप कर लो, मोर देन इनफ है। ओके, ओसी और एसपी दोनों के लिए। इकोनॉमिक्स के लिए थोड़ा अलग हो जाएगा, इकोनॉमिक्स में सिर्फ 2 मार्क का डिस्टिंग्विश होता है, तो उसके लिए आप 3 से 4 पॉइंट भी कर सकते हो, मोर देन 3 इज नॉट रिक्वायर्ड, 3 to 4 इज नॉट रिक्वायर्ड इन इकोनॉमिक्स। बट ओसी और एसपी में आपको ज़्यादा लिखना पड़ेगा, 5 to 7 पॉइंट्स लिखना पड़ेगा। ओके, सो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, ये जो पहला डिस्टिंग्विश है बिटवीन इंडस्ट्री एंड कॉमर्स, ये आप अगर इंडस्ट्री और कॉमर्स को बराबर से आप पढ़ लेते हो तो आपको डिस्टिंग्विश भी अपने आप आ जाएगा। ओके, डिस्टिंग्विश वापस पढ़ने की जरूरत नहीं है। वैसे ही देखो यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट है, डिस्टिंग्विश बिटवीन बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, ये वाला, ठीक है, ये वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये वाला जो डिस्टिंग्विश है उसको आप अपने टेक्स्ट बुक में भी स्टार मार्क करके रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 100% ये पूछा ही जाता है, यानी ये तीनों नहीं आएगा, इट विल नॉट बी आस्क्ड 3 एट अ सेम टाइम। कभी कभी क्या होगा, डिस्टिंग्विश बिटवीन ये दोनों पूछ लेंगे, ठीक है, तो डिस्टिंग्विश बिटवीन, कभी कभी आपको पूछा जाएगा डिस्टिंग्विश बिटवीन बिजनेस एंड प्रोफेशन, कभी कभी पूछा जाएगा आपको डिस्टिंग्विश बिटवीन प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। तो कहने का मतलब है किसी भी 2 के बीच में आपको डिस्टिंग्विश आ सकता है बिटवीन बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। और ये बहुत ईजी है, आपने अगर पहले फीचर्स भी देखे होंगे तो फीचर्स के ही पॉइंट्स है सारे। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे जो एक पॉइंट पकड़ लो आप, जैसे कि फॉर एग्जांपल कैपिटल हम लोग को पता है बिजनेस में बहुत कैपिटल लगता है, ठीक है, प्रोफेशन में
बहुत कम लगता है और एम्प्लॉयमेंट में तो बिल्कुल नहीं लगता है। तो एक एक पॉइंट को पकड़ो, ठीक है, और आप कर सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल क्वालिफिकेशन की कोई ज़रूरत है क्या बिजनेस में? नो, ठीक है। प्रोफेशनल की ज़रूरत है? येस, वेरी मच। ओके, एम्प्लॉयमेंट में इट इज़ रिक्वायर्ड, होगा तो अच्छा, नहीं होगा तो भी अच्छा। तो ऐसे करके आप तीनों को कवर कर सकते हो। अगर आपने फीचर्स भी पढ़ा है तो आप इजीली इसको याद कर सकते हो। और अगर आप डिस्टिंग्विश भी कर ले तो ये सारे, ठीक है, तो ये सारे डिस्टिंग्विश आपको फीचर्स में भी काम आएंगे। तो दोनों जगह पे अगर क्वेश्चन फीचर्स का आया तो भी आपको ये काम आने वाला है, डिस्टिंग्विश आया तो भी आपको काम आने वाला है। इसके लिए मैंने बताया स्टार मार्क कर लेना इसको, ठीक है। ये आपको 100% पूछा जाएगा, चैप्टर 1 से रिलेटेड है। ओके, सो हियर वी एंड आवर चैप्टर नंबर 1। अगर आपको कोई भी क्वेरीज है यू कैन इनबॉक्स मी इन माई यूट्यूब चैनल। ओके, थैंक यू, स्टे सेफ, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। ओके, थैंक यू।